Hello friends and welcome back to Gastro Guru. My name is Dr. Nisarg Patel and today we'll discuss how to use neuromodulators like fluoxetine, escitalopram, amitriptyline in a patients with functional GI disorders. गैस्ट्रो गुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं। ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन, गैस्ट्रो गुरु के संग। So we'll start with the talk. So now a case of a 21-year male patient who has 10 episodes of diarrhea per day. There are no alarm symptoms like weight loss, no alarm symptoms like GI history of malignancy or blood in stools. His appetite is normal. Investigations are all normal. Colonoscopy is also normal. So what is the diagnosis? So it is IBS, no doubt, irritable bowel syndrome, because in a young patient without alarm symptoms and reports normal. So diagnosis in this case is not a problem. The problem is actually the treatment. So what treatment do we give to these patients? So we either give Normaxin, we give Librax, we give them some cyclopam or mebeverine. We ask them to follow a good diet, we ask them to do yoga, meditation. But does this actually help? So the answer is no. So we have to learn some new tricks. So some of them will say that rifaximin and probiotics can be given. Yes, they are the treatment of choice in IBS patient, but for how long to give? So the main treatment is that we need to understand what is the underlying problem. So what is gut-brain axis? So in gut-brain axis, gut comes first. It is a complex bidirectional communication system between the brain and the intestines. So there are four main components of gut-brain axis. So it is one is the central nervous system, other is the enteric nervous system, then the autonomic nervous system, and the more importantly the gut microbiota. So brain, is it a manager? There are chemicals which are neuromodulators, and in the gut we get the end results. So our brain constantly is in communication with the gut via neuromodulators. So what are neuromodulators? So these are basically the messengers, which is a communication system between the gut and the brain. So it is a code language. So serotonin, norepinephrine, acetylcholine, dopamine and cortisol. These are the common neurochemicals that we have learned in our medical practice. So our gut and brain are constantly under communication. So what do they talk? So they talk कि भाई यहाँ पे जलन हो रही है, pain हो रहा है. So these all sensations like heaviness are relayed from gut to the brain. GI motility. So when the movement of intestine should happen, when the peristalsis should happen, how do we mix and expel and absorb the things? These all are basically communicated via gut and the brain axis. Secretion of acid and bile, the neuroimmune interactions and interactions with the gut microbiota. Even hunger, satiety, urge to pass stool and urine, the taste preferences, nausea, sleep. So these all are dependent on the gut-brain axis. So what is functional GI disorder? So when this talk between the gut and the brain, it becomes like a quarrel. So it causes gut-brain axis disturbances. So there is a disturbed neurochemical balance. We need to understand this chemical well. So if we know the physiology well, then we can know the pathophysiology well in detail. So disorder of gut-brain axis is there are no structural problems, the reports are normal, but the patient will have many symptoms. So we need to rely on history very heavily. So we need to understand what are the predominant symptoms of the common functional GI disorders or DGBI, that is disorder of gut-brain axis. So IBS, dyspepsia, CAPS or EPS, that is central abdominal pain syndrome or epigastric pain syndrome, chronic nausea, vomiting and supragastric belching. So these are the four common subtypes of functional GI disorders that we commonly see. So the anatomical location in IBS is colon. The predominant symptom is the patient will complain of pain abdomen with altered bowel habits. So that is IBS with normal reports, obviously. Dyspepsia is the patient will have upper GI symptoms. So the stomach and the duodenum symptoms will be there. So patient will complain abdominal heaviness, postprandial fullness. In CAPS, there are multiple locations and the predominant reason is pain
which is not associated with either meals or stool. The patient is having chronic abdominal pain, you have ruled out everything possible, and if no other pathology is found, including drugs, then you can put a diagnosis of central abdominal pain syndrome. Chronic nausea, vomiting, there are receptors in brain, esophagus and stomach. They will complain of obviously nausea, vomiting, prodrome. Supragastric belching, the problem is in the upper esophageal sphincter and the brain. The patient will have multiple belches. जो पेशेंट बार बार दिन में 50-100 डकार, यहाँ पे छुओ तो डकार, तो ये वाले पेशेंट आर supragastric belching patients. Mind you that there is significant overlap between these syndromes. So there can be a dyspepsia IBS overlap, there can be IBS EPS overlap, there can be nausea vomiting with IBS. So these disorders are not singular, they can be found in combinations. Always ask for the routine कि आप सोते कब हो, खाना कौन से टाइम पे खाते हो, एक्सरसाइज करते हो कि नहीं करते हो. Talk with the patients very well. If the communication is good, the patient will open up, the patient will say some points which will help you in diagnosis and treatment. You will understand where the problem lies. So you need to understand what are the trigger factors and what are the stress factors for which the FGIDs can be responsible. So now how do we choose the drugs? So first of all, understand the symptoms. के symptoms पेट के हैं या intestine के हैं, whether there is any overlap in the symptoms or not. Then choose the drug by matching the mechanism. के drug की mechanism कौन सी है, what are the neuromodulators involved, and how can you use these drugs effectively. If required, take 2 drugs in combination. Always ensure the patient understands that we are giving this drug for functional GI disorder, not for depression. बहुत सारे पेशेंट के सर डॉक्टर साहब आपने तो डिप्रेशन की दवाई दे दी, एंग्जाइटी की दवाई दे दी. तो मेक देम अंडरस्टैंड कि भाई गट और ब्रेन का कनेक्शन है और ये कनेक्शन के आधार पे ये जो दवाइयाँ है वो इन नसों पे काम करती है. दीज आर न्यूरोमॉड्यूलेटर्स. फॉर एंटी डिप्रेसेंट्स आपको बहुत हाई डोज लगते हैं और आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है. मैं साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, बट ये मेडिसिन 1-1.5 महीना दे के देखते हैं, आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है. Always give them good education. Communication is the key. So ensure compliance, and for compliance we need to do thorough counseling. So now we understand the common drugs, when to use these drugs. So SSRIs are the commonest drugs, जैसे fluoxetine, escitalopram, sertraline. These are the drugs. ये serotonin बढ़ाता है because they are serotonin reuptake inhibitors. Now what does serotonin does? Serotonin is a happiness hormone. सो हमें खुशी मिलती है एंड इट स्टेबिलाइजेज अवर मूड. सो हमारी एंग्जाइटी और कन्फ्यूजन कम हो जाता है. सो इट इज़ फर्स्ट चॉइस बिकॉज इट इज़ ईजी डोजिंग एंड लेस साइड इफेक्ट्स. अब कौन सी ड्रग कब यूज़ करनी है? सो यूज़ फॉर एग्जाम्पल पैरोक्सिटिन. सो पैरोक्सिटिन से दे हैव एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स. सो पेशेंट को ड्राउजी फील होगा, हाइपोटेंशन, ड्राई माउथ. सो ये पेशेंट को अगर आप IBS-C में पैरोक्सिटिन यूज़ करते हो तो पेशेंट को ऑलरेडी डायरिया है, तो दिस विल कॉज कॉन्स्टिपेशन. पेशेंट को नींद नहीं आ रही तो यू कैन यूज़ पैरोक्सिटिन, इससे ड्राउजीनेस हो सकती है. पेशेंट एंग्जाइटी वाला है, उसका पल्स BP बढ़ा हुआ है, तो पैरोक्सिटिन से वो PP अगर 140 है तो 120 तक आ सकता है. बट इफ़ द पेशेंट इज़ एल्डरली, ऑलरेडी हैविंग अ बॉर्डरलाइन ब्लड प्रेशर, तो अगर आप पैरोक्सिटिन दोगे तो शायद ब्लड प्रेशर कम हो सकता है. इफ़ देर इज़ इंसोमिया एंड एजिटेशन, सो सर्ट्रालिन विल कॉज इंसोमिया एंड एजिटेशन. फ्लुओक्सिटिन, सो इसको मॉर्निंग में देना होता है. तो अगर पेशेंट को नींद नहीं आ रही एंड इफ़ यू हैव गिवन सर्ट्रालिन तो पेशेंट का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा. सो इसमें डोंट यूज़ सर्ट्रालिन, यूज़ पैरोक्सिटिन और यूज़ अदर ड्रग लाइक एमिट्रिप्टिलिन और मिटाज़ेपिन. पेशेंट को गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल सर्ट्रालिन विल कॉज डायरिया. इनिशियली इट कैन कॉज नॉजिया, एवरी SSRI कैन कॉज नॉजिया, बट इट इज़ ओनली फॉर लिमिटेड टाइम. तो पेशेंट को ये समझाना है कि 15-20 दिन लगेंगे दवाई को सेट होते हैं, तो धीरे धीरे हो जाएगा. सो इफ़ द पेशेंट इज हैविंग कॉन्स्टिपेशन, सर्ट्रालिन इंक्रीजेज गट मोटिलिटी, इट कैन कॉज डायरिया. सो पेशेंट विल बी बेनिफिटेड बाय यूजिंग सर्ट्रालिन. बट इफ़ यू यूज पैरोक्सिटिन, it will cause opposite effects. So for IBS-D, you can use paroxetine. For IBS-C, you can use sertraline. Weight gain, फ्लुओक्सिटिन से वेट गेन नहीं होता. बहुत सारे लोगों को ये भी टेंशन रहता है कि सर मेरा वजन बढ़ जाएगा. सो फ्लुओक्सिटिन, ब्यूप्रोपियोन, these are weight neutral agents. We will see in the later slide.
Sub SSRI will cause sexual dysfunction. So this is a major problem. So अगर patient is complaining कि my libido is losing, then you need to change the group of drug, or you can wait for 6 weeks, 8 weeks, and then you can decide. You can lower the dose. But normally अगर low dose में use करते हैं तो practically I have not seen sexual dysfunction as a common problem in my current practice. डोजेज में जैसे नेक्सिटो का डोज है 5 to 20 मिलीग्राम. स्टार्ट विद अ लोअर डोज एंड ग्रेजुअली इंक्रीज द डोज. सर्ट्रालिन स्टार्ट विद 25 to 50 मिलीग्राम्स विद ब्रेकफास्ट विद फैटी फूड. सो सर्ट्रालिन का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है. सो ऑलवेज आस्क द पेशेंट टू टेक अ हैवी गुड ब्रेकफास्ट, जैसे थोड़ा घी या ऐसा कुछ चीज़ें लो कि जिससे सर्ट्रालिन का एब्जॉर्प्शन बढ़ सके. फ्लुऑक्सिटिन इज यूज इन द डोज ऑफ 20 to 40 मिलीग्राम्स. पैरोक्सिटिन इन 12.5 to 40 मिलीग्राम्स. You first start with a lower dose and then gradually increase every 3 weeks depending on the patient's response. You can go to maximum dose if there are no observed side effects. Then SNRI. अब SNRI में क्या है कि सेरोटोनिन का रीअपटेक तो इनिबिट करता ही है, बट नॉरएपिनेफ्रिन का भी करता है. तो जो सारे सेरोटोनिन के फायदे हैं, मूड स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग एंग्जाइटी, इंक्रीजिंग हैप्पीनेस, तो जो डिप्रेशन है, दे आर फास्टर एक्टिंग ड्रग्स. पेशेंट को 2-3 हफ्ते में, 1 महीने में दे विल स्टार्ट फीलिंग बेटर. पेशेंट विल कम्युनिकेट वेल. पेशेंट को आपको लगेगा कि मुंह पे जो मुंह उतरा हुआ था इट इज़ गेटिंग बेटर. सो नाउ दिस इज नॉरएपिनेफ्रिन. सो नॉरएपिनेफ्रिन वी ऑल नो इट इज़ फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स. तो ये क्या करता है कि अपना अलर्टनेस, अराउजल, एनर्जी बढ़ाता है. एंड व्हेन वी आर मोर एनर्जेटिक तो हमें पेन भी कम फील होगा. वील फील लेस ऑफ पेन. सो व्हेन देयर इज एवरीथिंग नीडेड प्लस पेशेंट बहुत लो है, सो गिव देम डुलॉक्सिटिन और डेस्पेनलाफ्लेक्सिन. तो पेशेंट की एनर्जी लेवल भी बढ़ेगी. पेशेंट अगर मुझे पूरा दिन सुस्ती लगी रहती है, काम करने का मन नहीं होता है, तो इसमें यूज़ डुलॉक्सिटिन और डेस्पेनलाफ्लेक्सिन. इससे पेन भी कम होगा. सो एनी फाइब्रोमाइल्जिया पेशेंट कि यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे दर्द है, दीज ऑल नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स के हाथ पाँव में झुनझुनी होती है, दीज कैन गो विथ डुलॉक्सिटिन. स्टार्ट विथ 20 मिलीग्राम इन द मॉर्निंग. Then you can go gradually up to 60 milligram. Initially for 30 days it can cause nausea and some GI disturbance. It can cause insomnia, so better to give it in the morning and afternoon. Desvenlafaxine, it can cause sometimes hypotension, so be watchful for the blood pressure. Now tricyclic agents. Now tricyclic agents are very old drugs, so they are very non-specific. So dopamine पे भी काम करेगा, acetylcholine पे भी काम करेगा, serotonin, norepinephrine. It works on every possible receptors. The important thing is they have a significant anticholinergic side effects. It causes prolonged QT intervals. It can cause constipation. It can cause increase the LUTS symptoms in prostatic BPH problems. So always be careful in elderly patients. It can increase the glaucoma, blurry vision. So for such patients, avoid tricyclic agents. They are very good drugs, but the young people can tolerate it better. So amitriptyline start with a low dose around 10 milligram. Always ask the patients. मैं हमेशा सब पेशेंट को बोलता हूँ कि ये दवाई आपको 7-8 बजे ले लेनी है, because the effect is long lasting, 12 घंटे, 14 घंटे. So if the patient is taking amitriptyline at 10 PM, तो पेशेंट को सुबह 12 बजे तक नींद लगा रहेगा. तो ask the patient to take it at 7 PM or 8 PM specifically. इट इज़ बेटर फॉर पेन. जैसे माइग्रेन में वी नो इट इज़ अ वेरी वंडरफुल ड्रग. सो अगर पेशेंट बोलता है सर दर्द है, उल्टी वगैरह हो रही है, तो इट इज़ अ गुड ड्रग. इट इज़ वंडरफुल ड्रग फॉर IBS-C क्योंकि इट कॉजेज IBS-D इट कॉजेज कॉन्स्टिपेशन. इट इज़ अ वेरी गुड ड्रग प्रोफाइलेक्टिक एजेंट फॉर क्रॉनिक नॉजिया वॉमिटिंग सिंड्रोम. अगर फंक्शनल डिस्पेप्सिया में पेशेंट को पेन हैवीनेस ज़्यादा है, सो एमिट्रिप्टिलिन इज़ बेटर देन एसिटालोप्राम इन दिस केसेस. Imipramine, it causes more hypotension as compared to amitriptyline. Now other important symptoms, जो पेशेंट के दूसरे सिम्टम्स है वो भी समझना ज़रूरी है. So if the patient is having severe कि नींद ही नहीं आ रहा, तो use either mirtazapine or amitriptyline. Dose of mirtazapine is starting 7.5 milligram up to 30 milligram. Mirtazapine again is a very good drug for chronic nausea and vomiting. It also increases weight. If the patient is concerned कि मेरा डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा, मेरा वजन कम होता जा रहा है, तो mirtazapine and amitriptyline will increase the weight of the patient within 3 months or 6 months. So patient will feel better कि हाँ मेरे शरीर में थोड़ी जान आई है. But the main problem is side effects. So we need to understand the side effects
and use it positively so that the patient will have a beneficial effect. So that is the whole scenario how to choose a neuromodulator in such cases. अगर पेशेंट को नींद ज़्यादा आ रही है, लैक ऑफ एनर्जी है, सो वी नो कि नॉरएपिनेफ्रिन वाली दवाइयाँ काम करेगी. सो डेसवेंलाफ्लेक्सिन एंड डुलॉक्सिटिन आर द ड्रग ऑफ चॉइस. If there is a concomitant neuropathic pain, then again duloxetine, tricyclic antidepressants and sometimes pregabalin also. वेट न्यूट्रल के पेशेंट को ऐसा है कि नहीं मुझे वजन नहीं बढ़ना चाहिए, तो देन फ्लोक्सिटिन एंड ब्यूप्रोपियन आर अ गुड ऑप्शंस. सेक्सुअल डिसफंक्शन, SSRIs can cause sexual dysfunction, but if you are using in a lower dose, then I have seen it less common practically. But if the patient still complains, then you can use bupropion. If there is significant anxiety, then you can use benzodiazepine. So जैसे long acting benzodiazepine जैसे Librax है, it is very commonly used in GI practice. But try to avoid using long acting benzodiazepine because they have a potential for addiction or dependence. Other important syndromes. So अगर if you are suspecting कि patient को IBS-C है, so use neuromodulator, sertraline और escitalopram. प्लस ऐड अ पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल और क्रीमाफिन. अगर आप इनको ज़्यादा फाइबर देते हो, सो समटाइम्स इट कैन इंक्रीज द ब्लोटिंग, इट कैन इंक्रीज द पेन बिकॉज द कोलन इज सेंसिटिव टू पेन. अगर पेशेंट को पेन ज़्यादा हो रहा है तो यू कैन यूज़ मेबेवेरिन लाइक कोलोस्पा, यू कैन यूज़ एल्डीसेट एंड यू कैन यूज़ ऑटिलिनियम ब्रोमाइड दैट इज़ मिनॉक्टिल. एल्डीसेट में पिनाविरियम ब्रोमाइड आता है. तो दीज ऑटिलिनियम एंड पिनाविरियम आर वेरी गुड ड्रग्स टू डिक्रीज द कोलोनिक पेन. सो कोलोनिक पेन कैसे आइडेंटिफाई करोगे? पेशेंट बोलेगा कि सर पेट में बहुत दर्द होता है, टॉयलेट जाता हूँ या गैस छूटता है तो कम हो जाता है. सिमिलरली द पेशेंट माइट हैव इंक्रीज पेन आफ्टर पासिंग स्टूल्स. सो IBS का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पेन आइदर बिफोर और आफ्टर पासिंग स्टूल्स और फ्लैटर्स. IBS-D में द प्रॉब्लम इज द पेशेंट इज हैविंग डायरिया. सो उसमें एमिट्रिप्टिलिन दैट इज ट्रिप्टोमर, नॉर्मैक्सिन. To decrease the frequency, you can use IB-Set, that is Ramosetron in 5 microgram in the morning dose, single dose, and you can use loperamide. आप बिंदास loperamide यूज़ कर सकते हो if the frequency is very high. Obviously, अगर कोई अलार्म सिम्टम्स है, पेशेंट एल्डरली है, तो फर्स्ट प्रूव सारे रिपोर्ट्स करके कि IBS ही है, बिकॉज IBS-C-D सब में ट्रीटमेंट लंबा चलता है. एंश्योर के पेशेंट को बताना है ये दवाई आपको 6 महीना 9 महीने लेने की ज़रूरत पड़ सकती है. इफ़ यू आर वेरी गुड ऑन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस तो आपकी दवाई जल्दी बंद हो जाएगी, पर आपको खाने पीने में ध्यान रखना है. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो भी आपको समझाना है वो रेगुलर करना है. देन PPDS दैट इज़ पोस्ट पेरेंडियल डिस्ट्रेस. जो भी पेशेंट बोलते हैं खाने के बाद सर बहुत पेट भारी हो जाता है, उफान हो जाता है, डकार आती है, तो दिस इज़ अ टिपिकल पोस्ट पेरेंडियल मील हैवीनेस in which escitalopram, and if the pain is predominant you can use amitriptyline. Nausea vomiting में you can use mirtazapine, bupropion, again amitriptyline and levosulpride. Levosulpride acts both peripheral as well as centrally. Actually levosulpride was initially discovered as an antipsychotic agent, so it is a very good drug in functional GI disorders, but in long term it can cause some major problems like permanent akathisia or neurological defects. If there is EPS, that is epigastric pain syndrome, then pregabalin, amitriptyline or gabapentin will work better. If the patient is having supragastric belching कि यहाँ पे दबाओ तो दर्द, यहाँ पे दबाओ तो डकार, यहाँ पे दबाओ, दिन में 50-100 बड़ी बड़ी डकार आता है, so this is a classical case of supragastric belching in which you need to explain the pathophysiology very well. कि आप यहाँ से हवा अंदर खींच के फिर वही हवा बाहर निकलती है, आपको बराबर 10-15 मिनट उसको डायग्राम के साथ समझाना पड़ेगा. You can use baclofen in 10 mg TDS dose maximum. Start with HS, then you can increase to BD and TDS based on the response. Ask the patient to perform diaphragmatic breathing. But if you ensure कि patient को आपने ठीक से काउंसलिंग किया है, so many patients get better and this is a learned behavior. So जो आदत पड़ गई है वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है. सो कमिंग बैक टू आवर केस, सो डायग्नोसिस तो अपने को पता है कि IBS है. ट्रीटमेंट में हमने ये सब दे दिया, नॉर्मैक्सिन, लिब्रैक्स, रिफागट, प्रोबायोटिक, हैवी खाना नहीं खाओ, एक्सरसाइज करो, स्ट्रेस नहीं लो, मेडिटेशन करो, बट हमें पता है कि ये पेशेंट ऐसे ठीक नहीं होते हैं. सो व्हाट इज़ द एडिशनल ट्रीटमेंट? सो एडिशनल ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन कि आप हिस्ट्री कितनी अच्छे से लेते हो. तो आपने हिस्ट्री में बहुत सारे पेशेंट बताते हैं, बट वी टेंड टू इग्नोर, हाँ ये तो पागल ही है, ऐसा बोलता ही रहता है, एंग्जाइटी है. हियर एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली.
क्योंकि आपको पता चलेगा प्रॉब्लम कहाँ पे है. सो द एडिशनल हिस्ट्री ऑफ दिस पेशेंट वॉज ही फील्स लाइक द फूड इज़ नॉट गेटिंग डाइजेस्टेड. पेशेंट को खाने के बाद हैवीनेस होती है, बर्प्स आते हैं, नोशिया वॉमिटिंग होता है. सो दिस मीन द पेशेंट इज़ हैविंग डिस्पेप्सिया ओवरलैप. पेशेंट को ऐसा है मेरा वज़न कम है, मेरा खाना जो खाता हूँ मेरे पेट में लगता नहीं है, वज़न नहीं बढ़ता. सो दिस इज़ हाउ द पेशेंट विल गिव द हिस्ट्री. इफ द पेशेंट, अगर आपको कोई बोलता है कि भाई मेरा खाना नहीं पचता, आस्क ऐसा क्यों लगता है आपको. तो ये पेशेंट ने मुझे बोला, ये सारी हिस्ट्री दी, तो मुझे पता चला कि द पेशेंट इज़ हैविंग डिस्पेप्सिया ओवरलैप प्लस ही हैज़ बॉडी डिस्मॉर्फिज्म. ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज करंट वेट. ही वॉन्ट्स टू लुक फैट, ही वॉन्ट टू लुक बेटर. ये पेशेंट सिर्फ 50 किलो का था, तो उसको ऐसा था कि मेरा 60 किलो वजन हो जाए तो मेरी वो हड्डियाँ नहीं दिखेगी, आई विल फील हेल्दी. इंसोम्निया, तो ये पेरेंट्स बताते हैं, पेशेंट नहीं बताएगा. तो पेरेंट्स बताएंगे 2-2 बजे तक इंस्टाग्राम देखता रहता है. सो दैट इज़ द हिस्ट्री दैट वी गेट. देन आस्क क्यों ऐसा होता है. देन पेशेंट विल से कि सर वो तो नींद नहीं आती तो मोबाइल देखता रहता हूँ. बट अगर आप उसको पूछोगे नींद अच्छे से आती है, तो हाँ सर नींद अच्छे से आती है, बिकॉज पेशेंट के दिमाग में ऐसा है 2 बजे से लेकर 10 बजे तक तो सो रहा हूँ, तो नींद तो अच्छी ही आती है. बट द स्लीप इज़ गेटिंग डिस्टर्ब्ड, ही इज़ हैविंग लेट स्लीप. कभी कभी रात को नींद खराब हो जाती है. तो ऑलवेज हैज दिस हिस्ट्री इन डिटेल. अगर मम्मी को पूछोगे खाना बराबर खाता है, तो मम्मी ऑलवेज अरे सर कहाँ खाना खाता है, 1 रोटी खाता है फिर छोड़ देता है, अगर पिज़्ज़ा बर्गर खिलाओ तो खा लेगा. तो समटाइम्स इट कैन बी फूड लाइक्स एंड डिसलाइक्स, कि बाहर का खाना पसंद है, घर का खाना नहीं पसंद है. तो ये हिस्ट्री कभी कभी मम्मी अच्छे से देती है. फिर पापा ये सब हिस्ट्री अच्छे से देते हैं कि भाई सीडेंटरी है, निकम्मा है, बैठा ही रहता है, कुछ काम नहीं करता, मैं ये उम्र पे ये करता था, वो करता था. तो दैट इज़ हाउ द पेरेंट्स विल गिव हिस्ट्री. समटाइम्स दीज हिस्ट्रीज आर नॉट ऑब्टेन्ड वेल बाय द पेशेंट्स. अगर आप पूछोगे खुश रहते हो, हाँ खुश रहते हैं. कोई टेंशन है, नहीं कोई टेंशन नहीं. बट अगर मम्मी को पूछो आपसे बात बराबर करता है, नहीं सर पूरे दिन सुन पड़ा रहता है, ठीक से बात भी नहीं करता, मोबाइल में पड़ा रहता है. इट मीन्स द पेशेंट विल हैव सम अंडरलाइंग डिप्रेशन. नींद बराबर नहीं आ रही, मूड सैडनेस, नॉट गेटिंग इन्वॉल्व, नॉट गोइंग इन सोशल फंक्शंस. ये सारी चीज़ें आर लाइकली ऑफ एंग्जाइटी, अंडरलाइंग डिप्रेशन. पेशेंट को कैरियर का टेंशन है, कोई भी क्राइसिस है, मैरिज नहीं हो रही, जॉब अच्छा नहीं मिल रहा, पैसों की दिक्कत है. सो इफ़ यू टॉक विद द पेशेंट्स वेल, यू विल अंडरस्टैंड कि कहाँ पे प्रॉब्लम है. So it requires obviously holistic treatment. So I added amitriptyline 10 milligram. उसको इफेक्ट थोड़ा कम आया, तो आफ्टर 1 month आई इंक्रीज टिल 25 milligram. 25 milligram पे ही वॉज बेटर. माई प्लान वॉज कि अगर नहीं फ़र्क पड़ेगा तो नेक्सिटो में ऐड करूँगा. बट 2 महीने के अंदर अंदर ही हैड अ एक्सीलेंट रिस्पॉन्स. द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 डायरियाज वॉज रिड्यूस टू अराउंड 4 डायरियाज पर डे. मैंने उसकी थोड़ी डाइट लाइफस्टाइल के भाई ये टाइम पे खेलने जाना है, ऐसा करना है, ये करना है. सो आई एडवाइज हिम दैट इन डिटेल. आई एडवाइज कि अभी लो फॉडमैप डाइट लो. आप लो फॉडमैप डाइट नेट पे सर्च कर सकते हो. दीज आर फर्मेंटेबल प्रोडक्ट्स. तो जो भी फर्मेंटेशन से अंदर जाएगा, इट विल कॉज मोर ब्लोटिंग, एंड बिकॉज ऑफ विसरल हाइपरसेंसिटिविटी इट विल कॉज मोर पेन. साइको एजुकेशन, एक्सप्लेन कि दिस इज़ अ डिसऑर्डर, दिस इज़ नॉट अ डिसीज. आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा. ये IBS है, IBS के बारे में पढ़ो. तो पेशेंट विल गेट इन्वॉल्व इन द ट्रीटमेंट प्लान. आंसर द कॉमन क्वेश्चंस कि सर इसमें मुझे कैंसर होगा तो नहीं होगा, इसमें मेरा डाइजेशन ख़राब है, नहीं आपका डाइजेशन कोई ख़राब नहीं है, ये सिर्फ इंटेस्टाइन की मूवमेंट कम ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से कभी आपको डायरिया हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है. सो एक्सप्लेन इन द लेमैन लैंग्वेज बट इन डिटेल, so that the patient can understand based on his educational level. अगर बहुत कोई पढ़ा लिखा है तो यूज़ दिस टर्म्स कि भाई डोपामिन में प्रॉब्लम है, नॉरेपिनेफ्रिन में प्रॉब्लम है, इस तरह से यहाँ पे ऐसे न्यूरोमॉड्यूलेटर्स होते हैं. सो दे विल फील कि हाँ द डॉक्टर इज़ नॉलेजेबल. और अगर गांव वाला पेशेंट है तो उसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाओ कि भाई जैसे पंखा है, एक रेगुलेटर है, आप रेगुलेटर जितना फास्ट करोगे उतना पंखा फास्ट घूमेगा, वैसे ही रेगुलेटर दिमाग में होता है. अब जितना उसको फास्ट करोगे उतना पेट आपका ज़्यादा फास्ट होगा, तो यहाँ पे टेंशन लोगे, इफेक्ट यहाँ पे आएगा. दिस इज़ इन अ सिमिलर मैनर यू कैन एक्सप्लेन द पेशेंट. सो टू समराइज, फर्स्ट अंडरस्टैंड देर आर द गट ब्रेन एक्सिस प्रॉब्लम आर वेरी कॉमन. In OPD, around 50 to 70% patients are having some or other functional GI disorders. It is always complex and overlapping. So you need to understand upper GI symptom and lower GI symptom. पेशेंट को सारी हिस्ट्री उलट पुलट करके पूछो, क्योंकि रिपोर्ट्स इसमें नॉर्मल आएंगे.
So if you talk more, if you educate more, you will likely be able to treat your patients well. Choose the drugs wisely. जो भी दवाई की साइड इफेक्ट है उसको आप इफेक्ट में यूज़ करने की कोशिश करो. एमिट्रिप्टिलिन का से कॉन्स्टिपेशन होता है तो IBS-D में यूज़ करो. सर्ट्रालिन से डायरिया होते हैं तो IBS-C में यूज़ करो. वेट गेन पेशेंट को चाहिए तो यूज़ मिटाज़पिन, एमिट्रिप्टिलिन. सो पेशेंट को क्या चाहिए उस हिसाब से यू कैन चूज़ योर ड्रग्स. एंड ऑलवेज बी होलिस्टिक, बी ओपन. पेशेंट बोलता है कि सर मैं होम्योपैथी कर सकता हूँ, बी से दैट यू कैन ट्राई, वी कैन सी. अगर कोई साइड इफेक्ट हो गए तो देखेंगे. आयुर्वेदिक येस यू कैन ट्राई. खाने पे थोड़ा ध्यान दो. दवाई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. मेरी दवाई शायद कुछ टाइम के लिए छोड़ दोगे तो भी चलेगा. बीच बीच में दिखाते आते रहना. ऑलवेज बी परस्यूएसिव, बी एम्पैथेटिक. पेशेंट को लगना चाहिए कि डॉक्टर मेरे बारे में सोचता है. So that's all for now. We will keep on discussing such many cases. So if you have liked the video, then please share it with your medical friends and colleagues. Always press the bell icon so that you can get notification for the every new video, and please like and subscribe to the channel. Thank you. Namaskar. गैस्ट्रो गुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं. ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन. गैस्ट्रो गुरु के संग.